Okay, so this question, the refractive index of material of prism and liquid 1.56 and 1.32. प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.56 है, जिस लिक्विड में वो रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.32 है रिस्पेक्टिवली. व्हाट विल बी द वैल्यू थीटा फॉर व्हिच द फॉलोइंग रिफ्रैक्शन विल ऑकर. तो सबसे पहले लेट मी मैग्नीफाई द इमेज फॉर यू. ये जो आपको इमेज दिया है इट इज समथिंग लाइक दिस. सो you have a container और इस कंटेनर में आपके पास एक लिक्विड है. I'll fill that also with some liquid. So you have a liquid in this container. Question is interesting and simple also. So you have something like this. इसमें आपके पास एक right angled prism है. Remember this is a right angled prism. And which is kept something like this. So let it not visible. तो आपके पास जो right angle prism है, it is something like this. ऐसा आपके पास prism है. Then you have a ray of light which is coming something like this, and it is incident right at the boundary of liquid and air, and it is going this way. इसका मतलब पहले तो ये समझ लो कि रे ऐसा आया यहां पे गया, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है वहां पे. Did the ray of light go into liquid? No, it is going only in the prism, which means total internal reflection हुआ है. And if you draw a normal here at the point of incidence, ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, ये थीटा है, ये 90 है. तो 90, this is 90 plus theta plus some angle 180. So this angle you can find out 90 minus theta. ये 90 minus theta हो जाएगा. Okay, so sure 90 plus theta equal to x is 180. So this angle will be 90 minus theta. Now you need to know how do you measure angle of incidence. So this angle here, ये angle कितना आएगा? Critical theta. This will be theta. So little bit of geometry you need to know. ये theta कैसे आया सोचो अब. You need to understand कि theta कैसे आया. And this is kind of a very simple thing. वो आप कर लोगे. I am expecting from your side. ये theta है. मुझे एक बात बताओ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? When the angle of incidence मतलब theta is greater than or equal to, बोल सकते हो, greater than or equal to critical angle. Very good. Theta is greater than equal to critical angle. Therefore, sine of theta is greater than or equal to sine of critical angle. बराबर. But do you remember sine of critical angle was 1 upon refractive index. Refractive index. अब refractive index किसका? प्रिज्म का, मतलब ग्लास का. विद रिस्पेक्ट टू किसका? लिक्विड. क्यों लिक्विड? क्योंकि ये कहां पे हुआ? एग्जैक्टली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड नॉट इन एयर. अगर यही ऐसा बताया गया होता तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर. करेक्ट? इज दिस क्लियर? गुड. तो एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. यू नीड टू नो दिस. ओके, विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड. यहां तक क्लियर हुआ? यस. तो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन, अगर आपको याद होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज μ2 बाय μ1. तो यहाँ पे आपने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, तो μp बाय μl, और ये μl जाएगा ऊपर. करेक्ट?
So sin theta is greater than or equal to mu L. Do you remember 1 point something? 1.1.32. 1.32 upon 1.56. Right. So sin theta is greater than or equal to 12 11 जा, अब मैं पॉइंट हटा दूंगा ना, you can remove point from both numerator and denominator, or this is 13 जा, तो sin theta is greater than or equal to 11 by 13. ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन. मैं वापस एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ. क्वेश्चन इजी है, सिर्फ आपको समझना है कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. वो कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो पहले ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो. When the angle of incidence is greater than or equal to critical angle, मतलब sin of theta is greater than or equal to sin of critical angle. Okay, but sin of critical angle is 1 upon refractive index. But refractive index of prism with respect to liquid, क्योंकि रे इंसिडेंट कहाँ पे हो रहा है? जस्ट एट द बाउंड्री, मतलब बाहर, इसके नीचे का मीडियम क्या है? लिक्विड. दैट इज व्हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड. But this is mu L by mu P, and mu L is 1.32 and mu P is 1.56. 11 by 13. So this is how you are supposed to solve this question. Okay. Next question. White light is incident on face AB of glass prism. The path of the green component is shown in the figure. If the green light is just totally internally reflected at the face AC, the emerging light from face AC will contain. मतलब बेसिकली क्या है कि आपके पास एक प्रिज्म है और यहाँ पे you have, this is a prism, let us say, just a minute, prism. आपको पता है प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट एंटर होता है तो इट अंडरगोस डिस्पर्शन. So this is what you need to know. So anyways, so you have a white light which is undergoing dispersion, and then the path of green light is shown something like this. मतलब green light के लिए you have angle of incidence as critical. तो यहाँ पे जब आप normal draw करोगे over here, this angle is critical angle for green color, right? अगर आपको याद है हमने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था. So which doesn't, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ग्रीन कलर है. White light enters, it will be dispersed into another colors also, yellow, orange, red. So I'll show few more colors here. So you can have yellow, you can have orange, you can have red. So ऐसा कुछ होगा, right? I'm not drawing exact diagram, but अगर आपको याद है, if you remember, मैंने बताया था, always start with wavelength. Wavelength of red is greater than wavelength of green, right? Right? Vibgyor. So Vibgyor तो पता होना चाहिए येलो, ऑरेंज, है ना? Vibgyor, VIBGY. Okay, orange, then yellow, and then green. Right? पक्का? जिसको नहीं पता मैं लिख देता हूँ. सबसे ज्यादा रेड का, फिर ऑरेंज का, फिर येलो का, और फिर ग्रीन का, ऐसा होता है. और अगर आपको याद होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. मतलब म्यू आर इज लेस देन म्यू ओ इज लेस देन म्यू वाई इज लेस देन म्यू जी. इसका मतलब, और क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, है ना? तो साइन ऑफ IC वापस से ग्रेटर देन IR. साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर रेड इज ग्रेटर देन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर ऑरेंज, इज ग्रेटर देन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर येलो, ग्रेटर देन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर ग्रीन. हो गया, आंसर खत्म. अगर ग्रीन का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट, देन the light for other colors, the rays for other colors must incident at higher angles to suffer total internal reflection. Correct? जिनको नहीं समझ में आया मैं वापस बता रहा हूँ, बेसिक्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है. ये समझा गया? ये
ग्रीन कलर का क्रिटिकल एंगल सबसे कम है, बराबर, तो दूसरे कलर का क्रिटिकल एंगल ज्यादा है। मतलब यहाँ पे जो इंसिडेंस हो रहा है, हियर angle should be, this angle for other color should be greater than critical angle for green to undergo total internal reflection। मतलब सिर्फ ग्रीन का ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, बाकी के कलर्स दे कैन गो आउट, बाकी के कलर्स दे कैन गो आउट, राइट। सो which colors will you have in the beam which is coming out? Yellow, orange and red। खत्म। Is there anyone जिसको क्वेश्चन नहीं समझा? I'll repeat, don't worry. Is there anyone? Sure. Okay. Next question. Okay, so let us look at this question. A 2 centimeter tall object is placed 15 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. What is the size and nature of the image? Easy question है। आपके पास एक concave mirror है, भूलना नहीं। Concave mirror looks like this. You have principal axis, moreover like this. Then ये concave mirror है। Then you know focal length is 10. This is f, which is 10. And of course यहाँ पे आएगा आपका somewhere over here r, which will be 20. मतलब the object जिसका साइज मतलब जिसका हाइट 2 सेंटीमीटर का है, इट इज केप्ट एट 15 समवेयर ओवर हियर। ओके, तो ये है। तो देन व्हाट डू यू नो इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 15 सेंटीमीटर, यू नो फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, you know mirror equation 1 by f equal to 1 by v plus, so 1 by v equal to 1 by f minus 1 by u, using sign conventions 1 by v equal to minus focal length of concave mirror is minus to the left, minus and minus plus, तो ये आपको मिलेगा 1 by u minus 1 by f। तो आपको यहाँ से पहले मिल जाएगा image distance, so you have 1 by image distance as 1 by u था 15, focal length था 10, so 1 by v is 10 minus 15 minus 5 by 150, 1 जा and 30 जा, minus 30 मतलब minus 30 सेंटीमीटर, राइट। तो minus 30 बना जो होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है if the object is between focus and radius मतलब f and 2f, image is formed beyond 2f, और 2f मतलब 20 सेंटीमीटर के पीछे, 30 करेक्ट है यहाँ तक, और रियल होगा इन्वर्टेड होगा, राइट। तो माइनस साइन मतलब रियल, बिकॉज इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड आर, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड आर, इमेज इज बियॉन्ड, रियल मतलब ऑन द सेम साइड, इसलिए माइनस साइन। इन्वर्टेड राइट एंड मैग्नीफाइड, सो मैग्नीफाइड मतलब बेसिकली यहां से सबसे पहले ये 2 ऑप्शन गायब होने चाहिए, एक तो वर्चुअल नहीं हो सकता, दूसरा डिमिनिश नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज ऑलवेज मैग्नीफाइड। अब बचता है ए और डी ऑप्शन। अब आपको चेक करना पड़ेगा मैग्निफिकेशन, यू नो मैग्निफिकेशन इज माइनस बी बाय यू, यू नो दिस इज माइनस ऑफ माइनस 30, राइट, और ये भी माइनस लोगे बिकॉज यू इज ऑल्सो माइनस 15, मतलब ये आ गया 2 टाइम्स बेसिकली। ओके, सो एनीवेज -2 मतलब समझ में आ गया, मैग्निफिकेशन में माइनस मतलब image is inverted with respect to object, that is why minus। okay, ऐसा मत बोलना कि माइनस मतलब इमेज का साइज छोटा है, माइनस हियर मतलब इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ट्वाइस मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मैग्निफिकेशन अकॉर्डिंग टू यू? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू 2, so height of image is 2 times of height of object, that is 4 centimeter and real, option number A, khatam। This is how you are supposed to solve this question। Okay, so next question, bright sunny day, a diver of height h stands at the bottom of the lake of depth capital H, looking upward he can see objects
outside the lake in a circular region of radius capital R. Beyond this circle, he sees the images of objects lying on the floor of the lake. Okay. If the refractive index of water is 4/3, then the value of R is. ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक यू कंफ्यूज, दैट्स इट. आपको सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश है यहाँ पे, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. इफ यू रिमेंबर, ऑफ कोर्स, अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश ऐसा कुछ देखा था, तो वही क्वेश्चन है. दिस इज द सेम क्वेश्चन एंड ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्टली. कैसे बताता हूं. What have you learned? You have learned कि यहाँ पे अगर एक फिश है तो the fish can see outside world only through a cone. Okay? और ये जो ऊपर बेस बनता है, सर्कुलर बेस, इसका रेडियस आपको पता है. इसका रेडियस का इक्वेशन आपको याद है? याद होना चाहिए. याद होना चाहिए. इसका जो रेडियस था r, इसका इक्वेशन था, हमने डिराइव किया, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव अगेन. r इक्वल टू 3/√7h फॉर वाटर, फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 4/3. जिनको नहीं याद है, आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव फॉर श्योर, बट आई एम गोइंग टू टेल यू फॉर्मूला. एटलीस्ट आपको फॉर्मूला तो बता दूंगा, कम से कम वो कर सकता हूं मैं. R was h upon under root of mu square minus 1. तो अगर वाटर होगा तो R is h upon under root of 4/3. 16/9 minus 1, 16 minus 9 is 7, right? 7/9, 9 का रूट, right? ये था फॉर्मूला. हमने 2 बार डिराइव किया इसको, एक बार रेगुलर स्टेट बोर्ड क्लासेस, अनदर जेईई नीट. तो आपको रेडियस पता है, करेक्ट, राइट? अगर आपको ये याद होता, एंड इंपॉर्टेंटली अगर आपको ये पता है, तो क्या बोला है, एक डाइवर है. डाइवर मतलब हु डाइव्स इनसाइड. ओके, उस डाइवर का हाइट कितना है? h. तो डाइवर जो है उसका हाइट h है, तो दैट डाइवर इज लुकिंग फ्रॉम आई, ऊपर देख रहा है, राइट? इसका हाइट कितना? h. टोटल डेप्थ कितना? कैपिटल H. तो ये जो हाइट है ये कितना? h माइनस h. लुक एट दिस फॉर्मूला. जो पहले सिर्फ h था वो अभी होगा h माइनस h. तो यू विल हैव r इक्वल टू 3h अपॉन √7 में ये जो h है, इस h की जगह पे आप सिर्फ सब्स्टिट्यूट करोगे h माइनस h. दैट्स इट. क्योंकि फिश हमने बॉटम पे लिया था. अब ये डाइवर का हाइट जो है, देखेगा कहां से? हो अपनी आंखों से देखेगा ना, राइट? मतलब कहां से देखेगा? यहां से. तो ये जो हाइट है, दिस विल बी कैपिटल H माइनस H. दैट्स इट. वो सिर्फ h की जगह पे आपको इतना सब्स्टिट्यूट करना था एंड डन. तो दिस क्वेश्चन वाज ओरल. है क्या? 3h माइनस h बाय √7. गुड. अभी यही क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है. Depth of this lake is, let us say, 10 meter. Okay. There is a submarine. 10 मीटर की जगह पे मैं बोलता हूं depth of the ocean is 2 kilometer. There is a submarine at a distance of 1.5 kilometer. Okay. So what will be R? 2 minus 1.5. 0.5 मतलब 500 मीटर. 500 into 3, 1500 by √7. ओके. और क्वेश्चन थोड़ा समझोगे. बियॉन्ड दिस सर्कल, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है. एक डाइवर है, वो स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ हाइट h. देयर इज अ लेक ऑफ डेप्थ d. लुकिंग अपवर्ड ही कैन सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द लेक थ्रू अ सर्कल. मतलब बाहर का जो उसको देखना है ऑब्जेक्ट ओनली थ्रू दिस सर्कल, इसके बाहर का नहीं देख सकता. ओके. बियॉन्ड दिस सर्कल ही सीज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द लेक.
क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या होगा? TIR। TIR होगा, मतलब इसके बाद उसको यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पड़े हैं नीचे वही इसको दिखने वाले हैं बियॉन्ड दिस सर्कल। ओके, तो थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन था, बट इट वाज रियली इजी एंड इंटरेस्टिंग आल्सो, so you are supposed to solve such questions. Next question. Okay, so a simple telescope consisting of an objective of focal length 60 centimeter and a single eye length मतलब eyepiece of focal length 5 centimeter. आपको पता ही है वैसे भी, in case of telescope you already know that objective is bigger in size, पता होगा उसका एपर्चर बड़ा होता है, किसका? ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव लेंस का, एंड आई पीस का छोटा होता है। यू ऑलरेडी नो दिस। देन दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, लेट अस से। देन you know rays coming from object at infinity something like this, और क्योंकि infinity से आ रहे हैं तो image will be formed at focal length of objective। तो ये यहाँ पे जो पहला इमेज बना, दिस इज फॉर्म्ड एट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, सो दिस डिस्टेंस इज इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव इज फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इंफिनिटी, करेक्ट। फिर हम आई लेंस को ऐसा सेट करते हैं कि ये जो इमेज बना है वो इट विल बी एट द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, याद होगा तो, इंटेंशनली, सो दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट infinity and highly magnified, ऐसा कुछ होता है वो, if you remember. Okay, if you remember, you need to know this. Then the idea behind this is very simple. Idea is pretty simple. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही फॉर्मूला था. You have learned only one formula. Which one was that? Magnifying power. And you remember magnifying power of a telescope was minus focal length of objective upon focal length of eyepiece. यही एक फॉर्मूला था, that's it, nothing else. Okay, एक ही फॉर्मूला सीखा था हमने. माइनस means the final image is inverted with respect to object. मैंने माइनस नहीं लिखा है. Okay, then but original definition of magnifying power was image एंगल. ये याद है क्या आपको? बीटा बाय अल्फा ऐसा कुछ लिखा था आपने, बीटा बाय अल्फा, याद है क्या? हाउ डू डिफाइन एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट द आई, मतलब ये यहाँ पे जो बीटा बनता है दैट वन. सो यू नीड टू नो, हियर यू गेट बीटा, दिस एंगल ओवर हियर इज बीटा, सो दिस इज समथिंग दैट इज फॉर्म्ड बीटा, राइट? सो बीटा बाय अल्फा, व्हाट वाज बीटा? ये जो बीटा है ये क्या था? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज. अल्फा क्या था? बाय ऑब्जेक्ट एट द आई. लेकिन आई पे डायरेक्टली एंगल बनाए या फिर ऑब्जेक्टिव लेंस पे बनाए, एक ही बात थी, अल्फा. व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर विड्थ? एंगुलर विड्थ मतलब बीटा. आपको क्या पूछा है? इफ द ऑब्जेक्ट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2, मतलब क्या दिया है? अल्फा. ऑब्जेक्ट सबटेंड्स एन एंगल 2, कहां पे? एट द ऑब्जेक्टिव, मतलब ये अल्फा था. इफ यू रिमेंबर दिस वाज अल्फा, दिस इज बीटा. और आपको क्या पूछा है? एंगुलर विड्थ ऑफ द इमेज. एंगुलर विड्थ मतलब बीटा ही तो पूछा है आपको, तो बीटा ही तो पूछा है. इट इज FO by FE into अल्फा. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ? व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ eyepiece? व्हाट इज दिस? 2. 1 जा and 12, 24. ऑप्शन नंबर सी, राइट? तो क्या पूछा था वही नहीं समझ में आया आप. एंगुलर विड्थ मतलब बीटा. एंगुलर विड्थ मतलब बीटा. हाइट ऑफ इमेज इज इन मीटर्स और सेंटीमीटर्स डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट. एंगुलर विड्थ इज इन डिग्रीज और रेडियंस. ओके, देन वापस से समझ लो एक बार. You have object at infinity, it makes angle alpha at the objective or directly at the eye, and your eye is somewhere over here, right? Correct? ये इसको बोलते हैं angular width of object, alpha. Okay?
Then by definition, magnifying power is beta by alpha, but magnifying power was focal length of objective upon eyepiece. So beta by alpha is FO by FE. So beta is FO by FE into alpha, where beta is called as angular width of image. Correct? Done. So in this question, a convex mirror, convex, important word, convex, focal length f forms an image 1 by n times of object. The distance of object, मतलब u पूछा है आपको. So first of all, you need to start from here, saying that you know what is m, and you know what is m. Yes, you know what is m. M is what? M is 1 by n. M is 1 by n. M is equal to 1 by n. Just a minute. Again, this is not responding. So you have m is equal to 1 by n. 1 by n. M is minus v by u equal to 1 by n. V is equal to minus u by n. 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u. 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u. या तो ऐसा करो या तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है अगर तो राइट इट लाइक दिस. 1 by u is equal to 1 by f minus 1 by v. Then using sign conventions. Convention यूज करने पड़ेंगे आपको, right? And by the way, before you use sign convention, put for v. So 1 by u equal to 1 by f. V was minus u by n. Minus minus plus. ये आ गया यहाँ तक. आपको क्या चाहिए? आपको u चाहिए. u चाहिए तो जहां जहां u दिख रहा है उसको एक साइड पे लाओ. इसका मतलब what you will be doing is 1 by u minus n by u equal to 1 by f. 1 by u you will be taking out common. Then 1 minus n equal to 1 by f. साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया, अभी कर लो. u तो फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसके कन्वेंशन यूज होते नहीं है. और कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स. तो ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, मतलब कोई इशू नहीं है. there's no issue at all. So you will have u equal to f into 1 minus n. Do you see something like that? Yes, yes, it is there. It is there. कैसे बताता हूँ. There's something that went wrong, a small thing. Okay, so correct. 1 by f, 1 by v plus 1 by u. Correct. Yes. Okay. Then next step, 1 by u equal to 1 by f minus 1 by. Correct. Yes. यहाँ सब्स्टिट्यूट किया. Good. इसको यहाँ पे लाए. Good. Okay. This is all good. Good. So where is the thing that went wrong? What went wrong? Huh? What went wrong? Nothing went wrong. You remember, this is all correct. What went wrong is option here. It should be a negative sign outside here. Negative. तो आपने जो किया है सही है. अगर आप भी नेगेटिव कॉमन निकाल लोगे तो क्या मिलेगा? नेगेटिव है n minus 1. माइनस 1 ना? पक्का ना माइनस 1? ओके श्योर. माइनस n था बराबर. मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया और ये प्लस 1 होना चाहिए तो माइनस माइनस प्लस. तो दैट इज करेक्ट. तो ओनली नेगेटिव साइन वाज मिसिंग इन ऑप्शन नंबर ए. गुड. Okay, so we'll stop here for today. More questions in the next session.